میں کوئی رکھنا نہ پڑے. لیکن نسیم صاحب لیٹس بی آنیسٹ, دیکھیں ریپبلکنز میں جو نئے کیڈرز آئے ہیں, اور اسفر آپ بھی اس میں ضرور میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ریپبلکنز کے کیڈرز میں اگر آپ کہتے ہیں ٹی پارٹی آئی ہے سامنے, تو وہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا وہ والا نہیں لائی ہے جو فارن پالیسی کا ہو. وہ تو فسکل کنزرویٹیوز ہیں, وہ تو امریکہ کی اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو کم کیا جائے, امریکہ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ختم کیا جائے یا کم کیا جائے, اور عام امریکی کی زندگی میں بہتری لائی جائے. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس پر؟ دے ول ناٹ فائنڈ اینی ووٹرز دیئر. نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریپبلکنز جو اس طرح کی پالیسی لے کے رکھے ہیں امریکہ کی اکانومی پہ زیادہ فوکسڈ ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے اخراجات کم کیے جائیں حکومت کے. اور آپ دیکھیں ریپبلکن کنونشن میں بھی گئے, یہ اسٹینڈ تو ان کا کانگریس میں ہے نا, لیکن بحیثیت پارٹی جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا اسٹینڈ یہ نہیں ہے. ان کے اسٹینڈ تو کے نتیجے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اور ایکسپینڈیچر کریں گے, بڑھ جائے گا ایکسپینڈیچرز. نہیں, اور ان کے اسپیشلی جو ایکسپینڈیچرز ہیں خاص کر جنگ کے حوالے سے ہیں, وہ جنگ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. دیکھیں وہی سب سے بڑا یعنی وہ ڈیفیسٹ کا ایریا. میں یہ سمجھتا ہوں جہانگیر کہ جی حسن صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی فرمائیے. اسفر صاحب کی بات کو میں اور آگے لے چلوں گا. وہ $5 ٹریلین کا ٹیکس کٹ دینا چاہ رہے ہیں رچ بلینئرز اور ملینئرز کو. تو اس کے بعد پھر وہ جنگ کی بھی بات کرتے ہیں, اور دوسری وہ بیسکلی وہ یہ رائے یہ ریورس رابن ہوڈ ہے بیسک جو ہے. اگر یہ بلینئر اور ملینئر کے اوپر اگر ٹیکسز جس طرح سے اوباما نے پروپوز کیا تھا اگر وہ لگ جائیں اور پیسے آ جائیں گے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جو ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. نہیں, بڑی بات تو ہے. اگر ہوتی تو یہ اس وقت اوباما اسٹرگل نہ کر رہے ہوتے جناب. دیکھیں میں بات ہو رہی تھی 2010 کے الیکشن کی. تو 2010 کے الیکشن واز اے ویو الیکشن. وہ ہوتا یہ ہے کہ جب آف ایئر الیکشن ہوتا ہے, جب 2010 میں 35% لوگوں نے ووٹ دیا, پریزیڈینشیل الیکشن میں 50 to 55% لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو جب آپ کا ویو الیکشن ہوتا ہے تو اس میں آپ اگر پارٹی کے اندر انتھوزیازم اپنا بہت لیول اوپر کر دیں تو وہ ویو الیکشن جیت سکتے ہیں. جس طرح سے ڈیموکریٹس نے بھی 2006 میں الیکشن جیتا تھا. رائٹ بالکل, انہوں نے دوبارہ کنٹرول حاصل کیا تھا. اینٹی وار سینٹیمنٹس تھے اور کافی چیزیں مطلب ایسی تھیں, کیونکہ لو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے. تو اس میں ویو الیکشن میں وہ آف پریزیڈینشیل الیکشن جو ہوتا ہے اس میں جتنا زیادہ آسان ہوتا ہے ایشوز کو اوپر سرفیس پہ لا کر. رائٹ, میں اسفر آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے ریپبلکن کنونشن میں کیا ایسا سینٹیمنٹ دیکھا کہ ریپبلکن لیڈرشپ اینڈ کیڈرز بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ وہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کا کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں گے اس الیکشن میں سیٹیں؟ نہیں, مجھے کافی ڈفرینس لگا. ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو جو ہے اس میں جو بھی اسٹینڈ ہے وہ اسٹینڈ تو ان کے کنونشن میں مجھے نظر نہیں آیا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہاؤ کانفیڈنٹ دے ور کہ دے ول ون الیکشن. دیکھیں وہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ عددی بنیاد پہ جو اکثریت میں ہیں اور ان کو ٹارگٹ بنائیں گے, اور اس کے لیے میں یہ حد تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہیٹ کی جو پولیٹکس ہے نا وہ اس کو آگے بڑھا کے ریورس وہ اپنا نتیجہ اپنے حق میں لانا چاہتے ہیں. جی ہاں, تو وہ میرے خیال ہے اس کے اندر اتنی پائیداری نہیں ہوگی. نیگیٹو دیکھیں, امریکی معاشرہ بڑا پازیٹیو معاشرہ ہے, اس میں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. جہاں کہیں کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھا کہ اگر مذہبی بنیاد پہ بھی کوئی امتیازی چیزیں ہوتی ہیں تو اکثریت اس کی مذمت کرتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو جو لوگ ایسے سوچ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں. ابھی تک اس معاشرے میں یہی چیزیں ہیں. یقیناً جو کنزرویٹیوز ہیں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے اس وقت تک تو نظر نہیں آتا کہ اس میں ان کو کامیابی حاصل ہوگی. جب اس میں کامیابی نہیں ہوگی, جب اس میں کامیابی میرا تو یعنی دونوں کنونشن دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ڈیموکریٹس کی کامیابی کے بہت زیادہ بالکل بہت زیادہ چانسز زیادہ. ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, اب ہم ذرا بات کریں گے کہ ان انتخابات کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کیا سوچتی ہے. اس سے پہلے کہ میں یہ نقطہ اور یہ سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھوں, میں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ہماری کمیونٹی کے ممبرانز کے ہم نے کچھ انٹرویوز لیے, ان کی رائے لیے. آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ پروگرام کو جاری رکھتے ہیں. I can't say anything at this moment, but most probably Obama is going to win. Survey, the poll, everybody is saying so. کہ Obama جو ہے is very most favorite over here at this moment. Yeah.
ओबामा ही नज़र आ रहे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि अभी तक तो मतलब पहले जो बुश थे उससे बेहतर हैं, उससे बहुत बेहतर है। मेरे को तो ओबामा से जीतेगा, इसलिए कि उसकी पॉलिसियाँ अच्छी हैं। कम से कम ये तो कर रहा है ना कि जो अमेरिका के अंदर है उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ तो कर रहा है ना, बाहर वालों को लेके आ रहा है जो जंग पे फजूल निकले हुए हैं, तो उनको इधर लेके आएगा। कम से कम बजट तो ठीक हो जाएगा ना, इकानमी ठीक हो जाएगी, इसलिए ओबामा ही जीतेगा। जी नाजरीन, तो आपने देखा हमारे अवाम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की राय भी देखी, और मैं ये नुक्ता नसीम साहब आपकी तरफ रखना चाहूँगा कि इतना बड़ा एक इंतखाबी मार्का हो रहा है, आइंदा 4 सालों के लिए अमरीका की सिमत का तयन हो रहा है, यानी नए इंतखाबात नई सिमत का तयन करेंगे। इसमें हमारी कम्यूनिटी कहाँ खड़ी है, मुसलमान कहाँ खड़े हैं? जहांगीर साहब, दरअसल मुसलमानों के मामले में एक बड़ी खुशफहमी रहती है हमें कि इनका कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज और बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर ग्रुप बन चुका है, ये ख्याल गलत है कतई तौर पे। हमें अभी तक पूरी तरह मालूम नहीं कि हकीकी मानों में हमारी आबादी कितनी है, हम कितने वोटर्स हैं हमारे, और कितने लोग इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन एक बात, इस पे काम करने की ज़रूरत है कम्युनिटी को। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गुज़श्ता 2 इंतखाबात से कम अज़ कम मुसलमानों ने एक्टिव रोल प्ले किया है, उनके लोग इसमें पेश सियासत में दाखिल हुए जी, मेन स्ट्रीम में। आपने देखा एक जो डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन मुस्लिम कॉकस, उसमें डेलीगेट्स, हसन साहब उसके को-चेयर हैं, का कॉकस है, उसमें 112 डेलीगेट्स जैसे कि, और इन्होंने टारगेट बनाया कि अगले कन्वेंशन तक कोई 500 डेलीगेट्स मुसलमान होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आम तौर से माइनॉरिटीज़ का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ ज़्यादा होता है उनके लिबरल अप्रोच की वजह से, और उनकी गुंजाइश उनकी पार्टी में ज़्यादा है मुख्तलिफ़ किस्म के ख्यालात के माइनॉरिटीज़ की। तो पाकिस्तानी भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज़ का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ है, और डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बड़ी फोर्स अगर आज वो नहीं है तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बल करीब में वो बनेंगी, उसी तरह बनेंगी जैसे दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, स्पेनिश हैं, ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन हैं, और दूसरी एशियंस हैं, ओरिएंटल्स हैं। उसी तरह मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका उभरेगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह, जो अपना बहुत मौसर रोल प्ले करेगा। फिल वक्त उनकी तगोदो जारी है। असफर, आपने दोनों कन्वेंशंस में क्या ऑब्जर्व किया? आपको कितने मुसलमान डेलीगेट्स नज़र आए, और फिर वो मुसलमान डेलीगेट्स कितने मौसर थे? यानी मैं 2008 के इलेक्शन को मैंने कवर किया था, मैं DNC भी गया था, और वहाँ पर मैंने देखा था, मुस्लिम कॉकस में भी मैं गया था, और अच्छे लोग कुछ आए हुए थे, लेकिन हम लोगों का उतना वो फोर्सफुल वो नहीं था। यानी मुस्लिम कॉकस से बड़ी कॉकस इंडियन कॉकस थी। इंडियन और ज्यूइश कॉकस ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था, वो उससे कई गुना बड़ा था और वो ज़्यादा मौसर था। और वहाँ पर जो लॉबिंग थी, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल शॉप्स खुलती हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन कन्वेंशन में, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स वर्क फॉर दैट। आपने क्या देखा वहाँ पर? देखें, रिपब्लिकन्स में तो भूल जाएं, वहाँ तो कोई इस तरह की गुंजाइश ही नहीं है कि उनका एक अशराफिया का क्लब है, और वो उसमें डेमोक्रेट्स के अंदर हमें नज़र आए। ओवरऑल जो हम देखते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के अंदर, इनको अभी तक इसी बात की फ़िक्र है कि वो अपने मुल्कों की सियासत में अभी तक लगे हुए, यहाँ रहते हैं, इनके बच्चे यहाँ पैदा हुए, यही इनका मुस्तकबिल है, इन्होंने वापस नहीं जाना। लेकिन लोग जो भी जो सियासत में आ सकते हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जिनके अंदर सियासी सूझबूझ है, वो अपने मुल्कों की सियासत में लेकिन 9/11 के बाद जो हमें, जैसा कि मेरे गुफ्तगू हुई, 9/11 के बाद जो लोग एक रवैया यहाँ पे रहा, लोगों को एहसास हुआ, उन मुसलमानों में एक इस बात पे तवज्जो दे रहे हैं कि वो सियासी अमल में हिस्सा लें। पहले तो लोगों में ये ख्याल है कि वो अपने वोट तक कास्ट नहीं करते, लेकिन अब बहुत बड़े पैमाने पे इस बात में लोग कन्विंस नज़र आते हैं कि इनको वोट कास्ट करना चाहिए, अपने वोट के अंदराज करना चाहिए, और फिर साथ ही अपने कुछ पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो अब लोग नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि जो 2004 के कन्वेंशन थे उसके मुकाबले में कोई 10 टाइम ज़्यादा लोग इसके अंदर मुसलमान आए हैं, और ये तादाद बढ़ रही है, और मुस्तकबिल में और ज़्यादा इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं। मैं हसन साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बीइंग को-चेयर ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेटिक मुस्लिम कॉकस, आपके पास क्या नंबर्स हैं? आपकी कॉकस ने कितनी, आपने पहली दफ़ा कॉकस 2008 में की, और अभी ये दूसरी कॉकस थी जो आपने डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में की है, कितने आगे आप लोग आए हैं? मैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। जी फरमाइए।
जो मुस्लिम डेमोक्रेटिक कॉकस से हमने पहली दफ़ा 2004 में, मैं नेशनल डेलीगेट था, बॉस्टन में कन्वेंशन हुआ था जिसमें जॉन कैरी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। उसमें हमारे टोटल पूरी नेशन से 18 डेलीगेट थे, पूरी नेशन से। अच्छा। डेलीगेट थे। उसके बाद 2004 में 45 और 43 का नंबर आया। 2008 में या 2004 में? 2004 में तो सिर्फ 18 थे। अच्छा, 8 में फिर ठीक है। 2008 में 40s में आ गया था नंबर, 43, 45 ऐसे ही कुछ नंबर था। अब इस साल 112 डेलीगेट हुए, तो हमने 100 का नंबर क्रॉस कर दिया। अच्छा। तो एक आम एस्टिमेट है कि मुसलमान जो हैं 2 to 3% हैं, मतलब 6 से 9 मिलियन के करीब हैं। इसमें बहुत सारी रायें मुख्तलिफ। तो लेकिन ये आपकी बात में काट रहा हूँ, ये हमारा दावा है, ये आज तक प्रूव नहीं हो सका। 2 रिसेंट सर्वे हुए, वो कहते हैं मुसलमानों की तादाद 2.6 मिलियन है। किसी मुसलमान ने आज तक उस पर कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं कराई। लेकिन ये मुसलमानों की तादाद की बुनियाद पे पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं मिल रहा। यहाँ तो देखिए ज्यूज कितने परसेंट। जी इनको भी बात करने देना। जी मैं उसी की तरफ में आऊँगा। देखिए कि क्यूबन अमेरिकन जो है फ्लोरिडा की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो नेशनल इलेक्शन को भी डिटरमिन करते हैं। तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े एक्टिव हैं, बड़ी एंथुसियाज्म के साथ उनका एक रोल होता है। और फ्लोरिडा को स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी को डिलीवर करने में क्यूबन अमेरिकन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी तरह से जब आप एक्टिव हैं तो इसमें जब आप नज़र आते हैं तो तादाद आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन 1%। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे सिर्फ नॉर्थ टेक्सास के इलाके में जो डैलस का एरिया है, हमने एक कोशिश करके मुसलमानों का वोटर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका डेटाबेस तैयार किया। अच्छा। 30,000 वोटर्स का हमारे पास डेटा हमारे पास अभी मौजूद है, जो कि हमने वोटर रजिस्ट्रेशन लिस्ट से जो मुसलमान नामों की बेसिस पर हमने तैयार किया। बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपसे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, मैं सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल ये करूंगा कि कितने मुसलमान इंतखाब लड़ रहे हैं, ताकि मैं आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दें आप अपनी। मुझे सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे एक नए कांग्रेसमैन डॉक्टर ताज जो मिशिगन से जी हाँ इंडियन मुस्लिम है। जी बिल्कुल। सबा ताज, वो इंशाल्लाह वो उनका बहुत इम्कान है कि वो इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है। इसके अलावा और जो स्टेट हाउस के और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में, मुख्तलिफ लेवल पे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी मैं गया था अलबामा में, सलमा अलबामा में, वहाँ के सिटी काउंसिल में मुसलमान हमारे हैं। तो इस तरह है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फैयाज हसन साहब, आई विश कि हम आपसे मजीद गुफ्तगू कर सकते। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। असफर, आपसे शुरू करता हूँ, फिर नसीम अख्तर साहब इसको क्लोज कर देंगे। आप क्या समझते हैं कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों को इस इलेक्शन में क्या किरदार अदा करना चाहिए? जस्ट से इट वेरी ब्रीफली। देखिए, मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी की बुनियाद की बजाय आप, कम्युनिटी तो एक बेस बनता है, कम्युनिटी की बुनियाद के बजाय आप एक माशरे के अंदर समाजी खिदमात के हवाले से अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। तो आप यहाँ पे ये इस माशरे में मुकाम बनाना, ये कंजर्वेटिव माशरा नहीं है इतना ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ बनाना ज़्यादा आसान है। तो आपके अपनी अददी तादाद की बुनियाद पे जो है आपका मुकाम नहीं मिल रहा, आप उससे ज़्यादा कुछ आगे बढ़ सकते हैं, जैसा कि और दूसरी कम्युनिटीज़ ने किया। तो अगर ये आप करते हैं तो इसके बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नसीम साहब, आप क्या फरमाएंगे? अददी हैसियत भी एक है जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और साउथ एशिया के जो मुसलमान इमिग्रेंट यहाँ आ रहे हैं और जो उनकी अफजाइश नस्ल का मामला है, उसके एतबार से आइंदा 20 साल में उनकी बहुत बड़ी तादाद होगी। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस तादाद में एक्टिव लोग कितने हैं, मेन स्ट्रीम में काम करना कितने लोग चाहते हैं, वाइट हाउस कितने लोग जाना चाहते हैं, कांग्रेस में काम कितना लोग करना चाहते हैं। तो असल मामला फिल वक्त हमारा तादाद का नहीं, तादाद अब भी माकूल है। असल मामला ये है कि हम मेन स्ट्रीम में हमारी क़यादत कितना एक्टिवेट करती है अपने आप को, और यहाँ बैठ के पाकिस्तान की सियासत से गुरेज़ा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग होने के बजाय वो कितनी डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन है, और कितनी वो रिपब्लिकन पार्टी की रुकन है, और कितनी वो ग्रीन पार्टी की रुकन है, और कितनी वो लिबर्टेरियन की है। बिल्कुल ठीक इन्वॉल्व यहाँ होना है, वहाँ का ख्वाब छोड़। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हम इस सिलसिले को इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी जारी रखेंगे। अमरीकी इंतखाबात के हवाले से हम इस किस्म के प्रोग्रामात करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को देखेंगे और हमें अपनी राय से भी नवाजते रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी राय भी इस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शामिल करते रहें। मैं आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा और आइंदा भी इसको देखते रहेंगे।
اگلے ہفتے تک جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.